Kumar is presenting the screen. Today we will read about so today we will read about gender. Gender क्या होता है बेटा? लाइक यू रीड इन हिंदी ऑल्सो स्त्रीलिंग एंड पुलिंग. ओके, हिंदी में आप दो पढ़ते हैं, है ना, स्त्रीलिंग एंड पुलिंग. बट इन इंग्लिश वी हैव फोर टाइप्स. ओके, वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर. So in English grammar we have four types of gender. So what are those? So that which refers to male persons or animals, they are called masculine gender, like boy, man, brother, king, bull, gentleman, dog. So these are all the nouns which refer to male persons. Okay, so they are called masculine gender. एंड द नाउन्स दैट रेफर टू फीमेल पर्सन्स, जो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और फीमेल एनिमल्स, दे आर सेड टू बी फेमिनिन जेंडर्स बोलते हैं उनको. इन इंग्लिश ग्रामर वी कॉल दम. सो द नाउन्स दैट रेफर टू फीमेल पर्सन्स को जो रेफर करता है, और फीमेल एनिमल्स, सो दोज नाउन्स आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर. ओके, दे आर सेड टू बी फेमिनिन जेंडर, लाइक गर्ल, वुमेन, सिस्टर, लेडी, queen, cow, bitch. So these are all feminine gender, these nouns. And some nouns are there which are used to refer to both male and female. We do not know कि वो मेल है या फीमेल, वो दोनों कोई भी हो सकता है. इट कैन बी मेल और इट कैन बी female also. So those type of nouns which refer to both male and female, like if I say child or if I say student, so that student can be a boy also or it can be a girl also, both. मैम वॉइस ट्रेन प्ले कर रहा है. Yes, so those nouns which are used to refer to both male या female, उससे हमें ये पता नहीं लगता है कि वो male है या female है. If I say student, if I say doctor, if I say teacher, if I say baby, child, parent, तो it can be anything. It can be boy child also, it can be girl child also, it can be a teacher who can be a male also या female भी हो सकते हैं. Okay, anything. So we do not know about the gender. So those nouns are called common gender in English grammar. Okay, like examples are given: friend if you tell, cousin if you tell, bird if you tell only. So we do not know it is a boy or a girl, it is a male or a female. So these nouns are called common genders. And some nouns are there which refer to मतलब non living things, like table, chair. Okay, so they do not have anything, उनका कोई मेल या फीमेल नहीं होता है. So those nouns which refer to non living things are said to be neuter gender. In grammar we call the word that we use for such kind of non living things, those nouns are called neuter gender. So this word neuter, it means neither, that is neither male nor female, like book, pen, bag, car, wood, gold, chair. So they do not have any gender, male या female. So they are called neuter gender. So now collective nouns. Okay, now how you will say collective nouns? So collective nouns, I told you, collective, the group, the word जो है collective, वो collection से बना है. Collection means group. So when we are talking about collective nouns like crowd, class, army, so these denote मतलब collections of living things है ये. So for example, class means it is a collection of students, and students, what is that? It is a collection of living beings. It can be boys and girls. Okay, students, there are boys and girls, living beings. So similarly, crowd also, it is a collection of so many people, and these people are all living beings. But these nouns are thought to be of the neuter gender. So these collective nouns, okay, as a whole, persons, although they are made up of living beings, but when we talk about the whole collective noun, so that nouns are used as neuter gender. Okay, they are called neuter. Okay, now let us go to the next part, how to make feminine gender. कैसे बनाएंगे, ways of forming the feminines of nouns. तो nouns अगर masculine noun आपको दिया गया है एग्जाम में, so how you will make it feminine, how you will change the gender.
So mostly we change the gender by adding ESS. Okay, like lion, lioness. ओके, सो मोस्टली जो है हम ESS लगा के और उसका जेंडर चेंज कर सकते हैं, इट बिकम्स फेमिनिन जेंडर. ओके, लाइक सम एग्जांपल्स आर गिवन, ऑथर, ऑथरस, लायन, लायनस, प्रीस्ट जो मंदिर में पूजा करते हैं पुजारी, और पुजारिन जो प्रिस्टेस, होस्ट, होस्टेस, पोएट, पोएटेस. ओके, लेकिन ऑलरेडी अगर ई उसमें एंड में लगा हुआ है, सो यू विल नॉट ऐड अगेन वन मोर ई, सिंपली उसके पीछे डबल एस लगा देंगे. ओके, और समटाइम्स थोड़ी सी स्पेलिंग हमें चेंज करनी पड़ती है, स्लाइटली वी नीड टू चेंज द स्पेलिंग बिफोर एडिंग ESS. लाइक हियर यू कैन सी एग्जाम्पल्स आर गिवन, सम एक्टर, तो इसमें हम डायरेक्टली उसके पीछे ESS नहीं लगाएंगे. ओके, बट वी विल स्लाइटली चेंज द स्पेलिंग. ओके, इसमें कैसे करेंगे हम, ACTRESS. ओके, ओ हटा देंगे हम और फिर ESS लगा देंगे. एक्टर, एक्ट्रेस, प्रिंस, इट इज एंडिंग इन ई, तो इसके पीछे हम दोबारा से ई नहीं लगाएंगे, ओनली ESS. मास्टर, मिस्ट्रेस, गॉड, गॉडेस, इसमें डबल डी हो जाएगा. ओके, गॉडेस. टाइगर, टाइग्रेस, तो इसमें जो आप देखोगे तो ये जो है आर से पहले जो ई है उसको हटा दिया है और फिर हमने ESS लगा दिया है. टाइग्रेस. वेटर में भी ऐसे ही है, ER है, सो वी विल रिमूव दैट ई जो है आर से पहले को हटा देंगे और फिर उसके पीछे ESS ऐड कर देते हैं. सो समटाइम्स वी नीड टू चेंज द स्पेलिंग्स, और समटाइम्स जो है पूरा डिफरेंट ही वर्ड यूज़ करते हैं हम फॉर फेमिनिन, लाइक बॉय के लिए गर्ल, मैन, वुमेन. सो समटाइम्स वी यूज़ एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, पूरा नया वर्ड आ जाता है टू मेक इट अ फेमिनिन जेंडर. लाइक एग्जाम्पल्स यू कैन सी हियर, मैन, वुमेन, हस्बैंड, वाइफ, अंकल, आंट, फॉक्स, विक्सन. हार्ट, हार्ट क्या होता है बेटा, हार्ट इट इज अ मेल डियर. डियर जो होता है हिरण, मेल डियर, उसको हम हार्ट बोलते हैं. सो फीमेल डियर इज कॉल्ड अ हाइंड. बॉय, गर्ल, रैम, ईव, इसमें ईव की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई है, इट इज़ EWE, आप करेक्ट कर लेंगे इसको, इट इज़ नॉट EVE. रैम क्या होता है, मेल शीप, जो मेल शीप है इट इज़ कॉल्ड रैम, और फीमेल शीप इज़ कॉल्ड EWE. चिल्ड्रन करेक्ट कर लेना ये स्पेलिंग अपनी बुक में, इट इज़ EWE नॉट EVE. ओके, देन हॉर्स, फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं. ओके, फीमेल हॉर्स इज कॉल्ड अ मेयर. विजार्ड, विच. ओके, विजार्ड, विच. नाउ कम टू द कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन्स आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो. कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो कि 2 वर्ड्स से बने होते हैं या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से बने होते हैं. दोज वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स. इसमें 2 नाउन्स होते हैं. ओके, इट कैन बी 1 नाउन एंड 1 प्रोनाउन भी हो सकता है. ओके मैम. नाउ हार्ट का मीनिंग कोई पूछ रहा था. हार्ट, HART, हार्ट मीन्स मेल डियर, इट इज कॉल्ड हार्ट, एंड हाइंड इज द फीमेल डियर, एंड रैम इज अ मेल शीप, जिससे अब वूल मिलता है, हमें ऊन मिलता है, वूल. That is called, male sheep is called ram and female sheep is called EWE, Eve. Okay. विजार्ड का मतलब क्या होता है? Now come to compound nouns. Yes, what happened? मम विजार्ड का मतलब क्या होता है? मम विजार्ड का मतलब क्या होता है? Wizard, witch. विजार्ड मतलब कि ये जो जादूगर टाइप होते हैं तो उसको विजार्ड बोलते हैं, और विच जो जादूगरनी. मैम गार्डनर का मैम फीमिनाइन क्या होता है? मैम फीमिनाइन क्या होता है? गार्डनर का तो मैंने बताया नहीं है ऐसा कुछ आपको. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. So now come to the compound nouns. How you will make the feminine gender of a compound noun. Compound noun I told you जो कि 2 words से बना होता है और उनके बीच में एक हाइफन लगा होता है, like you can see here in the examples. Okay. So इसमें हम क्या करेंगे, which part you will change. जिस पार्ट, जो पार्ट जेंडर दिखाता है उस पार्ट को हम चेंज करेंगे. जैसे लाइक द एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, मैन सर्वेंट, तो इसमें हम मैन सर्वेंट की जगह कर देंगे मेड सर्वेंट. ओके, मैन को चेंज कर देंगे और मेड बना देंगे. ही गोट, तो ही को शी गोट.
पीकॉक, सो इट इज पिकॉक को पी हेन कर देंगे, कॉक का जो है फीमेल हेन होता है। लैंड लॉर्ड, सो लॉर्ड का लेडी होता है, लैंड लॉर्ड लैंड लेडी। वॉशरमैन वॉशर वुमेन। स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर। ओके, सो ऐसे ही हम फेमिनिन जेंडर्स बनाएंगे मैम कंपाउंड स्टेप नाउन्स के। ब्रदर नाउ वी स्टेप हैव सिस्टर का क्या एक्सरसाइज। मीनिंग होता है? सौतेला भाई, सौतेला सौतेली सिस्टर। ओके, सौतेला भाई को स्टेप ब्रदर बोलते हैं, सौतेली सिस्टर स्टेप सिस्टर। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज एम, दैट इज फेमिनिन जेंडर। हाउ हम लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? मैम इसकी पीडीएफ भेजोगे? नाउ डिस्टर्ब मी इन बिटवीन। एक्टर एक्ट्रेस। मिल्कमैन के दो आंसर्स हो सकते हैं। ओके, इट कैन बी मिल्क मेड ऑल्सो या इट कैन बी मिल्क वुमेन ऑल्सो, दोनों करेक्ट है, मिल्क वुमेन मिल्क मेड बोथ। बैचलर, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिस लड़के की, उसको बैचलर बोलते हैं, जो शादीशुदा नहीं है। और जो लड़की और जो पढ़ रहा है मतलब बैचलर। ओके, और जो लेडी होती है उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। ओके, बैचलर स्पिंस्टर। सो ही बेयर शी बेयर। कॉक मुर्गा, hen is मुर्गी। जेंटलमैन लेडी। Then come to master mistress, governor governess, horse mayor, nephew niece। nephew मतलब कि आपके जो हैं भाई की बेटी जो होती है, या फिर उसको हम नेफ्यू बोलते हैं। मौसी का बेटा है या फिर मामा का बेटा है तो उसको नेफ्यू बोलते हैं। और नीस जो मामा की बेटी या फिर जो आपकी मौसी की बेटी है वो आपकी नीस। मैम हे बियर। मैम भतीजा। मैम ही बियर। पोएट पोएटेस। मैम ही बियर। ओके, ड्यूक। ही बेयर मतलब कि जो मेल बेयर होता है बेटा, बेयर में भी होते हैं ना मेल और फीमेल, तो ही बेयर जो मेल होता है, शी बेयर इज द फीमेल वन। देन ड्यूक, ड्यूक इज अ रैंक। ओके, दैट जो ब्रिटिशर्स वगैरह के में होता है, नोबल मैन यूज कर, ब्रिटिश के टाइम पे वो लोग यूज करते हैं। अ नोबल मैन ऑफ अ हाई रैंक, दैट इज अ ब्रिटिश टर्म। सो ड्यूक का डचेस। मैम बैचलर का क्या होगा? स्पिंस्टर स्पिंस्टर। ओके, हॉर्स मेयर, हॉर्स का मेल वाला को हॉर्स बोलते हैं, घोड़ा, और घोड़ी को इन इंग्लिश वी कॉल मेयर, MERE मेयर। ओके, वेटर वेट्रेस। गैंडर, गैंडर मतलब बतख। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ, एक तरह की बतख होती है गैंडर, और उसको जो है गीज होता है। ओके, उसकी फीमेल गीज। मैम बैचलर का क्या होता है? बैचलर जो शादीशुदा नहीं है, स्पिंस्टर। मैन सर्वेंट उसका मेड सर्वेंट होगा। शेपहर्ड शेपहर्डस। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, शेपर्ड क्या होता है? शेपर्ड जो चरवाहा होता है बेटा, मेल उसको, और फीमेल को शेपहर्डस। ब्राइड ग्रूम जो दूल्हा, एंड दुल्हन को ब्राइड। हंटर हंट्रेस। नेग्रो, नेग्रो मतलब कि जो आदमी बहुत काला होता है और शॉर्ट हाइट होती है उसको नेग्रो बोलते हैं। और नेग्रेस, ओके, इसका नेग्रेस होगा। स्टेप फादर स्टेप मदर। अब ये मस्कुलिन जेंडर्स आर गिवन हियर। यस बेटा। नेग्रो इज अ पर्सन ऑफ शॉर्ट हाइट, और वो उसका स्किन का कलर जो है बहुत डार्क स्किन होती है उसकी, डार्क कलर की स्किन होती है उसकी, बिल्कुल बहुत ही काले होते हैं वो, डार्क स्किन। मास्टर्स का क्या है? मास्टर का एक्चुअली अफ्रीका मिस्ट्रेस। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज एन। एक्सरसाइज एन, यू हैव टू राइट द मस्कुलिन जेंडर। इसमें जो है ड्यूक मतलब इट इज अ ब्रिटिश का जो है टर्म होता है, ये एक नोबल। काउंटेस इट इज also a term। okay, a noble man who is having a high rank in the British के में ये भी यूज होता है काउंटेस। ओके, तो इसका होगा काउंट, या फिर अर्ल भी होता है, EARL अर्ल, या फिर काउंट भी बोल सकते हैं। देन आई थिंक द फीमेल डॉग काउंट, या फिर उस अर्ल होता है उसका। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। काउंटेस काउंट। यस, सो काउंटेस काउंट।
and bitch is a female dog, so that answer male will be dog. Then empress, empress मतलब जो महारानी होती है, और उसका फीमेल होगा मेल, उसका होगा emperor. Empress is a female महारानी. Okay, I will tell, I am coming. विडो, विडो जिसकी डेथ हो गई है हस्बैंड की, ओके, तो उसको विडो है, ओके. और इसका जो मेल होगा विडोवर, विडोवर. मैम व्हाट इज द मीनिंग? देन अदर ऑल आई हैव डिस्कस्ड. विडो जिसके हस्बैंड की, एक लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसको विडो बोलते हैं इन इंग्लिश. और जिसके वाइफ की डेथ हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके हस्बैंड को विडोवर. ओके मैम एम्प्रेस का एम्पायर होगा. एम्प्रेस का एम्पायर होगा. एम्प्रेस, एम्परर. लास, लास मीन्स क्या होता है बेटा, जो कि एक लड़का होता है, ओके, ही इज कॉल्ड अ लास, या लैड भी बोलते हैं उसको, हु इज यंग अनमैरिड बॉय. तो उसका आंसर होगा मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्टेस? मैम ऑथरस का क्या बनेगा? ऑथरस का ऑथर. मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्टेस? लास, विच वन? मैम एम्प्रेस तो क्या बनेगा? एम्परर, मैम एम्परर. क्या बनेगा उसका? लास्ट का क्या बनेगा? लैस आई एम एक्सप्लेनिंग बेटा, अभी वही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं लैस का. ओके, लैस क्या होते हैं बेटा, एक यंग अनमैरिड गर्ल, ओके, इज कॉल्ड अ लैस, तो इसका लैड बनेगा. ओके, लैड इज अ यंग अनमैरिड बॉय. लेडी, जेंटलमैन. मैडम, ये आपके लिए बहुत स्पेशल है बेटा. आप लोग जो है कई बार जो अब एग्जाम में आता है तो सर का जो है आप मैम लिख देते हो, दैट इज रॉन्ग. मैम नहीं होता है, मैडम. सर, मैडम, नॉट मैम. अदर ऑल आई हैव डिस्कस्ड गॉडेस, गॉड, टाइग्रेस. यस मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्टेस? हॉस्टेस, जब आप कहीं पर जाते हो किसी के घर पे, तो जो आपको वेलकम करते हैं, या फिर कहीं पे आपके लिए जिन्होंने अपने घर पे पार्टी रखी है और वो आपको देख मैम कॉन्टेस्ट क्या होता है? ट्रीट कर रहे हैं, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, पोजेशन. ओके, पोजेसिव मीन्स इट कम्स फ्रॉम द वर्ड पोजेशन. सो पोजेशन मतलब कि कोई बताता है कि ये चीज़ किसकी है, ये चीज़ हमारी है. ओके, दैट इज कॉल्ड अ पोजेसिव noun. So a noun or a pronoun that indicates a possessor or owner of something is said to be the possessive noun. Like if I say this is Megha's book, तो ये book मेघा की है, so Megha's book. So how you will write this possessive nouns? कैसे आप इसको लिखते हैं possessive nouns को? Okay, so how you will write? An apostrophe use करते हैं. Okay, we use an apostrophe to write the possessive nouns. So how you will write the possessive noun of singular and plural noun? It is different. So singular noun अगर है तो मान लो उसमें s नहीं होता है, okay, तो हम उसमें apostrophe लगा के s लगा देंगे and then it will become the possessive noun. Okay, like example is given, you see the child's toys. तो ये toys किसके हैं? child के हैं, है ना. तो उसको हम कैसे शो करेंगे? सिंपली s नहीं लगाना, एक apostrophe. apostrophe मीन्स ऊपर, कॉमा जैसे आप नीचे लगाते हैं, apostrophe को ऊपर लगाना होता है. ओके, छोटा सा, तो apostrophe s, that is called possessive, to show the possessive noun. The child's toys, the horse mane. ओके, तो हॉर्स की मेन मतलब कि वो दाढ़ी सी जो होती है हॉर्स की, उसको मेन बोलते हैं. ओके, या फिर उसके तो उसको कैसे दिखाएंगे? जो एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाना है. ओके, सिंगुलर नाउन है तो, और प्लूरल नाउन में ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है और कई बार एस नहीं होता है. तो एस अगर है तो सिंपली आप एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, और अगर एस नहीं लगा हुआ इन द प्लूरल नाउन लाइक चिल्ड्रेन, तो यू विल पुट एन एपोस्ट्रॉफी एंड देन ऐड एस. ओके, सो यू रिमेंबर जस्ट कि जहाँ पर एस है आपको सिंपली एपोस्ट्रॉफी लगा देना है प्लूरल नाउन में, और अगर एस नहीं है तो आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे. ओके, इफ द वर्ड डज नॉट एंड इन एस. ओके, सो हाउ यू विल मैम रिद्धि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी के साथ.
we use the possessive form, that is apostrophe s या s लगा के apostrophe form of nouns. mostly हम इसको people या animals के साथ ही use करते हैं, जैसे कि lion's teeth, the dog's tail, okay, the cat's eyes, we tell in this way, okay. but we don't say the branches of the tree, हम ऐसा नहीं बोलते trees branches, we say the branches of the tree. so usually जो है ये possessive वो हैं we use with people and with animals, okay. so here an exercise is given, I will be sending the answer key, you have to do it in your textbook. so how you will use the possessive form of the nouns to rewrite each group of words wherever possible. so the name of my cousin, तो इसमें लास्ट के जो वर्ड्स हैं 2 वर्ड्स my cousin, इनको लेना है आपने. तो the name of my cousin, that means my cousin's name. तो it is a cousin is singular, so apostrophe s लगा के you will write, okay, my cousin's name. now second one you see the books of the ladies. so here ladies is plural और s लगा हुआ है, s is there at the end, तो आप दोबारा से apostrophe s नहीं लगाएंगे, simply खाली apostrophe, okay, simply you will write only apostrophe, the ladies books. third the battle of the girl. so here the girl is a singular noun, okay, so you will add apostrophe and then s, the girls battle. the saddles of the horses, here horses is plural, so you will not add again apostrophe s, only apostrophe लगाना है. the horses saddles, saddles क्या होता है बेटा, जिनको आप घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए उसके आप में पैर रख के उसके ऊपर चढ़ते हो ना, एक बना होता है. मैम कोई चैटिंग कर रहा है आप उसके किसी के ऊपर साथ. पैर लगा के चढ़ते हैं. so that is मैम कोई चैटिंग कर रहा है किसी के साथ. look at the chatting. fifth one the petals of the flower. so here flower is singular, so you will add apostrophe s, the flowers petals. the shop of the chemist, so chemist is also singular, so you will add here apostrophe s, the chemist's shop. the nests of the birds, so here birds is plural, तो इसमें हम apostrophe लगाएंगे खाली, s नहीं लगाना है पीछे, only the birds nest, s के बाद apostrophe लगाएंगे ऊपर. the tail of the fox, the fox tail, so here apostrophe s लगाना है. the mast of the ship, so here ship is singular, so the ship के बाद apostrophe s लगाना है, the ship's mast. the crown of the king, so here also you will add the king's crown, apostrophe s. the dinner for the guest, so here also you will add apostrophe s, the guest's dinner. the spade of my gardener, my gardener's spade, okay, apostrophe s. the speech of the minister, the minister's speech, apostrophe s लगाना है. the feather of the bird, the bird's feather, apostrophe s लगाना है. the bicycle of Sumit, Sumit's bicycle, so here also apostrophe s you have